ویلکم بیک۔ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں سے آنے والے سیلاب نے رجحان کے نواحی علاقہ عثمان سمیت دیگر علاقوں میں تباہی مچا دی۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے کچھی کینال کو بھی نقصان پہنچا۔ رجحان میں ہونے والی موسلادھار طوفانی بارشوں نے جل تھل کر دیا۔ کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور دیگر فصلیں تباہ۔ عثمان کے مختلف مقامات کو بھی پانی کے بے رحم ریلے نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ رود کوہی کا پانی پیاز اور کپاس کی فصل میں نہ نکلا۔ فصلیں تباہ ہونے سے علاقہ مکینوں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے ڈاٹ بند ہو گیا اور چک دل بر کی طرف بہنا شروع کر دیا۔ سیلابی پانی مسلسل نشیبی علاقوں کی طرف بہ رہا ہے اور راستے میں تباہی مچاتا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دادو میں بارشوں نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے پول کھول دیے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ صفائی کا عملہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شعیب تھیم کی رپورٹ۔ دادو میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارشوں نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ شہر کی ہر گلی ہر محلہ میں بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جس کے باعث شہری سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ دادو کا ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے بارش اور سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے۔ شہریوں کو اس گندے پانی سے گزرنا پڑ گیا ہے، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ دادو کے شہریوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ گندے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے عوام کو نجات مل سکے۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان شاہین بلوچستان میں زور دکھانے لگا۔ گوادر میں تیز ہوائیں اور سمندر میں طغیانی کے باعث کشتیوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ لسبیلا، گوادر، آوران، جیونی اور ماڑا میں مسلسل دوسرے روز کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز ہواؤں نے بھی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ کئی مقامات پر بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ ساحل پر موجود کشتیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شاہین سے متعلق 7واں الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب کے شمال مغرب میں موجود شدید سمندری طوفان کراچی کے مغرب سے 470 کلومیٹر دور، جبکہ اور ماڑا سے 250 اور گوادر سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ طوفان کے گرد ہواؤں کی رفتار 110 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سسٹم کے مرکز میں سمندر میں شدید طغیانی ہے۔ آج شام تک سمندری طوفان مغرب اور شمال مغرب کی جانب بڑھے گا، جس کے بعد طوفان کا رخ دوبارہ تبدیل ہو کر جنوب مغرب میں مسقط، عمان کی جانب ہو جائے گا۔ خیرپور ناتن شاہ میں حالیہ تیز بارشوں کے باعث تحصیل کے مختلف علاقوں میں چاول کی فصل زیر آب آ گئی۔ خیرپور ناتن شاہ میں سیم نہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے شگاف پڑ گئے۔ چاول کی فصل زیر آب آ گئی، جس کے باعث کاشتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ بارہا انتظامیہ کو درخواست دی کہ نہر کے پشتے مضبوط کیے جائیں، لیکن بے سود ثابت ہوئے۔ بارش کا پانی اور نہر کے شگاف سے پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ کاشتکاروں نے حکومت سندھ اور حلقے کے منتخب نمائندگان سے مطالبہ اصلاح احوال کا کیا ہے۔ طوفانی بارشوں سے تباہی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ واہی پاندھی سمیت دیگر شہروں کا دادو سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کرتھر کے پہاڑوں میں بارشوں کے بعد گاج ندی نے کاچھو کے راستے تباہ کر دیے ہیں۔ گاج ندی بھرنے سے واہی پاندھی، ٹنڈو رحیم خان اور دیگر کئی شہروں کا جوہی اور دادو سے زمینی رابطہ بحال نہیں ہو سکا، جس کے باعث کاچھو کے علاقہ مکین اور تفریحی مقام گورکھ حل آنے والے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث غلہ منڈی میں سہولیات کا فقدان ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ کسانوں کے لیے نہ پینے کا صاف پانی دستیاب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کی جگہ۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ شہر کے وسط میں واقع غلہ منڈی میں سہولیات کا فقدان ہے۔ غلہ منڈی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے اٹھنے والی مٹی کی دھول سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سڑکیں ٹوٹنے سے کسانوں کو اناج کی آمد و رفت میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلہ منڈی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ غلہ منڈی میں کسانوں کے لیے نہ تو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کی جگہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ غلہ منڈی کا روڈ اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ روڈز کی جلد سے جلد تعمیر کی جائے۔ شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ڈپٹی کمشنر مجوید سے مطالبہ کیا ہے کہ غلہ منڈی کی سڑکیں تعمیر کر کے کسانوں کے لیے صاف پانی اور بیٹھنے کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ شیخوپورہ میں جگہ جگہ منی پیٹرول پمپس اور ڈبہ سٹیشنز قائم کر دیے، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ محمد مشتاق کی رپورٹ۔
शेखुपुरा और इसके गिरदोनवा में जगह जगह पर मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन कायम है, जहां किसी किस्म की कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। शेखुपुरा बाईपास पर डब्बा स्टेशनों की भरमार है। पेट्रोल की मुंतकली के दौरान आग लगने के कई वाकयात जन्म ले चुके हैं, जिनमें इंसानी जानों के ज़िया के साथ ऑयल टैंकर्स भी जलकर खाकसर हो चुके हैं। आए रोज़ ऐसे वाकयात रूनुमा होने के बावजूद ज़िला इंतजामिया और मुतलका अदारे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और अब ऐसे वाकयात की तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। डब्बा स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल और केमिकल के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त सरेआम जारी है। शहर में 200 से जायद मकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन कायम हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि इन मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन के खात्मा के लिए कड़े इकदाम उठाएं। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। वेलकम बैक। सवात में मट्टा के इलाके में गैरत के नाम पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाशों को मट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुरीदके में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। खतरनाक हादसे में रिक्शा सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने जिला चिन्योट का दौरा किया। मुख्तलिफ थानों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान कलियार की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने जिला चिन्योट का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीएसपी सिटी चिन्योट व दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने सदर मालखाना का विजिट किया, रिकॉर्ड का जायजा लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मालखाना के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने एसओपी के मुताबिक थाना जात के माल मुकदमात को महफूज बनाने, रिकॉर्ड की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट। मेलसी में चोरी डकैती की वारदातों से आजिज मोबाइल फोन्स, ताजर यूनियन और अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रेलवे फाटक और अहम शाहराहें बंद कर दी। कहते हैं चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों ने एहतजाज पर मजबूर किया है। पुलिस का रवैया भी दुरुस्त नहीं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। आए रोज़ डकैती, चोरी और कत्ल की वारदातें हो रही हैं। कैसे कारोबार करें? हम बंदूक पकड़कर पहरा दें या कारोबार करें? पुलिस हमारी नहीं सुनती। कंदकोट में आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। एक माह में दूसरा मरतबा वफाकी हुकूमत के जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में 4 रुपए बढ़ाकर 128 रुपए 30 पैसे मुकर्रर की। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने ट्रांसपोर्ट हजरात और शहरियों के चीखें निकाली। एक महीने में तकरीबन 40 रुपया जो है तेल वो बड़ी हो गई रकम पे। हम गरीब आदमी एक खाना भी एक वेले पे नहीं खा सकते हैं, तो हम गरीब आदमी किस तरह से जी सकें? पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा होने से एशिया खुदनोश की चीजें महंगे हो गए हैं। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम को कर दिया परेशान। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। अक्टूबर टेक्सिंग में महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए खुरनोश और किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद शहर में महंगाई का तूफान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई का बामी गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन रही है। एक तरफ डॉलर बेकाबू है तो दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम की जेब काट रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से आटा, चीनी, सब्जियां और ट्रांसपोर्टर की जानब से किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मानावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर जरगर। मानावाला हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तरीखी बदतरीन सतह पर जा पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मानावाला के शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए। इस हवाला से मानावाला के शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी गुर्बत की चक्की में पिस गया है। आए रोज पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में एशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ा दी जाती है। सब्जी, फल, दालें और दूसरी एशिया खुर्दनोश भी महंगी हो जाती हैं। 5
500-600 रुपए कमाने वाला मजदूर कहाँ जाए। इमरान खान साहब से अपील करना चाहता हूँ कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ी जा रही हैं और पेट्रोल में जिस तरह पेट्रोल ज़्यादा होता है उसकी कीमतें बढ़ी जा रही हैं, इस तरह मुल्क में दूसरी महंगाई भी ज़्यादा हो जा रही है। मानावाला के शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है इसको कम किया जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। पीर जोगी पहाड़पुर में महंगाई का तूफान अपने उरूज पर है। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। शाहिद खरल की रिपोर्ट। पीर जगी पहाड़पुर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल तर बना दिया है। चीनी सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है तो वहीं घी 350 रुपए फी किलो, आटा 20 किलो का थैला 1200 रुपए जा पहुंचा है तो वहीं ब्रायलर मुर्गी का रेट 350 रुपए किलो क्रॉस कर चुका है। दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतें भी डबल हो चुकी हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है महंगाई ने गरीब का जीना हराम कर दिया। देख लें आप, आटा रोज बढ़ रहा है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, सब्जियां देख लें, सब्जियां आसमान पर पहुंचोगी। अब हुकूमत वक्त पर जिम्मेदारी ऐद होती है कि मदीना रियासत को सच साबित करने के लिए आम आदमी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी पहाड़पुर लिया। ठुल हमजा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के वादे हवा हो गए। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। फयाज अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए जबकि डीजल 2 रुपए फी लीटर बढ़ाकर आवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। इस बारे लोगों ने मजीद बताया कि आवाम को ख्वाब बहुत ज़्यादा दिखाए गए थे हुकूमत में आने से पहले, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है तो ये बिल्कुल ही मतलब नाला है, बिल्कुल महंगाई कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो हमारी जान छोड़ दे। कैमरामैन मोहम्मद जावेद खान के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सिठारजा में महंगाई का सुनामी आ गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों और दीगर तमाम इशाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाकी हुकूमत से कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम किए जाएं। सिठारजा के अवाम ने पेट्रोल मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए तब्दीली सरकार से फैसला वापस लेने और अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज़, सिठारजा। कोहाट में इलाका राजगीर बांडा और बाबरी बांडा के आवाम के लिए जनाज़ागाह और ईदगाह के लिए 50 लाख रुपए का चेक इलाके की वेलफेयर कमेटी को दिया गया और मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया गया। अली बंगश की रिपोर्ट। हमेशा की तरह कोहाट सीमेंट फैक्ट्री इलाके के फलाह बहबूद के कामों में तावन कर रही है। आज कोहाट सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से इलाका राजगीर बांडा और बाबरी बांडा के आवाम के लिए जनाज़गाह और ईदगाह का इफ्तिताह किया और 50 लाख रुपए का चेक फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज अजमल खान, CSR माहिर स्पेशलिस्ट किफायतुल्लाह ने इलाके की वेलफेयर कमेटी के हवाले किया। इस मौके पर सिक्योरिटी इंचार्ज रिटायर कर्नल अजमल खान ने कहा कि कोहाट सीमेंट कंपनी की तरफ से ये जो 50 लाख रुपए हमने इन दोनों गांवों को दिए हैं, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जनाज़गाह और ईदगाह के ऊपर ख़र्च होंगे, इनके अपने हाथों से ख़र्च होंगे और ये एक ऐसी जगह बन जाएगी जो कि इस इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और ये एक सदका जारिया है। इस मौके पर वेलफेयर कमेटी मेंबरान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, इस मौके पर मैं फैक्ट्री मालिकान एजाज साहब, शेख नदीम साहब हो गए, उमर साहब हो गए, इन सब का अपने इलाके की तरफ से, सारे की तरफ से शुक्रिया भी अदा करते हैं। अगर इसी तरह फलाही और निजी इदारे इलाके के फलाह बहबूद के कामों में दिलचस्पी रखें तो वो दिन दूर नहीं जब इलाके पसमानदा रहें और तरक्की न करें। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल की कच्चा खूह में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गोदामों में छुपाई गई हजारों मन चीनी बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तार इस्माइल ने स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कच्चा खूह में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर खुफिया गोदामों में छुपाई गई हजारों मन चीनी, घी, चावल कब्जा में लेकर गोदामों को सील कर दिया। मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी। दूसरी कार्रवाई में अताई डॉक्टर का क्लिनिक भी सील कर दिया गया।
सिनामा की सड़कों और बाजारों में तजावजात की भरमार लग गई। तजावजात के बायस शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनामा शहर में मेन बाजार और मेन रोड पर तजावजात की भरमार है। रोड की दोनों अतराफ ठेले और रेहड़ियों वालों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। दुकानदार लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बड़े बड़े ट्रक रोड पर खड़े कर देते हैं। खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये ट्रॉलर और ट्रक वगैरह सड़क पर खड़े किए होते हैं। तजावजात का अमला तो आता है, अपनी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं है वहाँ से हिटते, तो इसकी वजह से लोग जो है ना बहुत परेशान है। ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल गायब है इधर से। शहरियों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया से तजावजात को फिलफोर खत्म करने का मुतालबा किया है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेन रोड और मेन बाजार के अंदर तजावजात का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोटअदू में 4 साला फैजान को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटअदू 4 साला फिजान अगवा के बाद कत्ल का मामला। मामूजाद मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। DSP इजाज़ हुसैन बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मुलजिम मामू के पास रिहाइश पजीर था, जबकि मुलजिम का कहना था कि मुझे गुस्सा था, बच्चे को कत्ल किया। मामू से पैसे मांगे जो कि ना दिए तो गुस्से में कज़न को दरिया में फेंक आया। मुझसे गलती हो गई। हमने फौरी तौर पे उनकी अगवा की FIR दर्ज की। उसके बाद मुलजिम और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन हमें CCTV फुटेज मिली जिसमें देखा हमने कि मुलजिम बच्चे को लेके बाइक पे जा रहे हैं। चुनांचे हमने फौरी तौर पे उस मुलजिम को ट्रेस किया और अरेस्ट किया। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू। आरिफ वाला थाना रंगशाह की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डाकू लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़े हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। मोर सिंह में ये वाकया पेश आया। गुज़िश्ता रात 4 का नामालूम डाकू हाजी मोहम्मद बिलाल के घर की 4 दीवारी फलांग कर घर में दाखिल हुए थे। डाकू ने हाजी बिलाल वगैरह को यरगमाल बनाकर सऊदीया पलट हाजी बिलाल के घर में सेफ अलमारी से लाखों रुपए तलाई जेवरात का सफाया कर गए। 15 की कॉल पर पुलिस थाना रंगशाह चक मेहर सिंह हाजी बिलाल के घर पहुँच गई और मजीद फॉरेंसिक इमदादी टीमें भी जाए वकूफा पर पहुँच गई। जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस थाना रंगशाह हाजी बिलाल की मुद्दत में डकैती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। झेलम में महकमा फिशरीज की दरिया झेलम पर गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। मौके पर जुर्माने भी आयद किए गए। महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद तैयब हुसैन की हिदायत पर इंस्पेक्टर मुसर्रत नज़ीर, सुपरवाइजर मोहम्मद अकरम और दीगर स्टाफ ने दरिया झेलम के किनारे पीरा गैब के मकाम पर बगैर लाइसेंस के मछली पकड़ने वाले शिकारियों को जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि मछली पकड़ने वाले शिकारी महकमा फिशरीज झेलम के ऑफिस में आकर शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें और सालाना फीस 1000 रुपए जमा करवा कर लाइसेंस बनवा सकते हैं। बगैर लाइसेंस के मछली का शिकार करना गैर कानूनी है। झेलम के DPO ने आवाम के मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। आवाम की शिकायत का फौरी इजाला किया और मौका पर अहकाम जारी किए। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। अवामी शिकायत का इजाला करने और फौरी हल के लिए DPO झेलम ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO झेलम शाकर हुसैन दावर ने साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए। शहरियों का कहना था कि DPO झेलम की तरफ से हमारी बात सुनी गई और हमारी दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। खुली कचहरी लगानी चाहिए और गाँव गाँव में भी ये होना चाहिए। पिछले IG साहब और मौजूदा IG साहब की अवलीन तरजीह है और इस हुकूमत की भी ये तरजीह है कि साइलिन के लिए जो सरकारी मुलाजमीन है, ख़ासकर जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, जिसमें पुलिस का महकमा पहले नंबर पे है, तो वो पब्लिक को अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाएं। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। पुलिस अगर ऐसे ही हमारी बात सुने जैसे DPO झेलम ने सुनी तो हमारी दाद रसी होगी। DPO झेलम का कहना था कि IG पंजाब की हिदायत है कि रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे खुली कचहरी लगाएंगे ताकि अवाम की शिकायत का फौरी इजाला हो सके। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, झेलम। आरेवाला के थाना सदर में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में आवाम की शिकायत सुनकर उनके फौरी इजाले के अहकाम जारी किए गए। जावेद रजा की रिपोर्ट।
आई जी पंजाब की हदायत पर आरिवाला के थाना सदर में अवाम की शिकायत और उनके हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने थाना सदर पुलिस के मुतलका अपने मसाइल बयान किए, जिस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन आयशा भट्ट ने साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनकर उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन आयशा भट्ट ने कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम के मसाइल सुनकर हकीकी मानों में उनकी दादरसी करना है। इस मौके पर एसएचओ थाना सदर मोहम्मद शाहद भुट्टा और डीएसपी सर्कल हाफिज खिजर जमान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। सिटी पुलिस चकवाल की कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ के अहकामात पर एसपी फैसल सलीम इन्वेस्टिगेशन चकवाल ने थाना सिटी चकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिटी पुलिस चकवाल ने माह सितंबर के दौरान असला नाजायज के 4 मंशियात के 11 और शराब के 3 मुकदमात दर्ज किए। इसके साथ साथ 3 मुजरमान इश्तिहारी, 13 अदालती मफरूरान और डकैती के केस में मुलविस मुरादा गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 21 लाख रुपए की 100% रिकवरी कर ली गई है और गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्जिम मोहम्मद शफीक साकिल लाहौर के कब्जा से 4 अदद सोने के कड़े बरामद कर लिए गए हैं जो सराफा बाजार से चोरी किए गए थे। डीपीओ चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ ने इन तमाम कार्रवाइयों पर तमाम टीम मेंबरान को तारवी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम देने का भी ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.21% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1664 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी वायरस मजीद 46 जिंदगियां निकल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,796 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,94,86,951 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 27,831, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,48,202 हो गई, जिनमें से 3,511 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 11,73,437 मरीज सेहत हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,934 हो गई। सिब्बी में जिले इंतजामिया के ज़रिए तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात के दरमियान हुस्न क़िराअत और नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। उमर फारूक की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। सिब्बी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी में तलबा और तालिबात के माबैन हुस्न क़िराअत और नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि तलबा में और तालिबात में जो है इसका शौक बुलंद हो। मुकाबले के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना मैडम महजबी ने खिदमत आप की तहलीज पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 10 बिलियन ट्रीज के मनसूबे के तहत अपने दफ्तर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसमें मुख्तलिफ अकसाम आम, नीम, जामन व दीगर पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में मैडम साजिदा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना मुजफ्फरगढ़, टीचर्स यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी जमशेद अख्तर बाबर और अब्दुल गफार काकड़ समेत टीचर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैडम महजबी का कहना था, जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक और जनाब सेक्रेटरी तालीम साउथ पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब के विजन के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर साहब के विजन के मुताबिक और अपने सीओ मुजफ्फरगढ़ के विजन के मुताबिक आज हमारे डीओ वुमेन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वुमेन के ऑफिस में टीचर यूनियन का एक अच्छा स्टेप जो है वो कि इन्होंने प्लांटेशन हमारे इस इदारे में की। शहरियों को चाहिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस मुहिम को आगे लेकर चलें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। साउथ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत कौमी खेल हॉकी को फरोग देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में तहसील और जिले लेवल की हॉकी लीग के मुकाबले मुनक़द हुए हैं। तहसील लेवल के मुकाबलों में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल फोर्ट अब्बास की टीम फाइनल मैच जीतकर जिला लेवल हाई हॉकी टूर्नामेंट में पहुंच गई।
جنوبی پنجاب ایجوکیشن ونگ کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر سیکنڈری بہاول نگر گلزار احمد بھٹی کی زیر نگرانی ہاکی لیگ کے مقابلہ جات سو پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح بہاول نگر ضلع میں بھی انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں تحصیل بار کے گورنمنٹ اسکول کی 8 ٹیموں کے درمیان ایک ہفتہ سے جاری ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم نے چک نمبر 293 HR کی ٹیم کو شکست دے کر تحصیل چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کروا لیا۔ آج تمام تحصیل لیول پہ اپنا فائنل ہو رہا ہے ہاکی کا، تو یہ بہت اچھا ایونٹ رہا۔ عوامی سماجی حلقوں سمیت اسکول انتظامیہ اور پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول مقصود احمد نے ہاکی کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے مقابلہ جات ضروری قرار دیا۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔